Hello everyone and welcome to Knowledge and Quiz Universe. Our today's quiz is on National Emblem of India, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। हमारे कल के क्विज में हमने नेशनल फ्लैग के बारे में कवर किया था और आज हम नेशनल एम्बलम के बारे में कवर कर रहे हैं। सो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चंस। भारत गणराज्य के राष्ट्रीय प्रतीक का नाम क्या है? What is the name of the national emblem of the Republic of India? Lion, Ashoka Stamp, Bengal tiger, or lion and swan? The correct answer is Ashoka Stamp, and Ashoka Stamp is a replica of the lion capital of Ashoka. भारत के राष्ट्रीय प्रतीक किस तिथि को अपनाया गया था? On which date was the national emblem of India adopted? 15th August 1947, 26 January 1950, 26 November 1936, or 2nd October 1948? The correct answer is 26 January 1950, जिस दिन को हमने अपना पहला गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया था. The day we celebrated our first Republic Day, on that day, the national emblem was adopted. भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर हैं? How many lions are there in the national emblem of India? The correct answer is 4. There are 4 lions in the national emblem of India. At a time, you can see only 3. Because they are all located in a circular manner, तो एक टाइम पे हमें सिर्फ 3 लायंस दिखाई देते हैं. आपको अभी इस पिक्चर में जैसे 3 लायंस दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे एक और होगा. And what do these denote? The 4 lions seated back to back imply power, courage, confidence and pride. 4 शेर शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गर्व का प्रतीक है. So as I told you, there are 4 lions mounted back to back on a circular abacus, and they represent power, courage, confidence and pride. शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गर्व. राष्ट्रीय प्रतीक पर कौन से जानवर दिखाई देते हैं? What animals appear on the national emblem? Lion, horse, bull or elephant? The correct answer is all of them. आप अगर इस इमेज को देखेंगे तो यहाँ पे 4 शेर हैं. अगर आप नीचे देखेंगे जो द सर्कुलर प्लेटफॉर्म और द सर्कुलर abacus on which these lions are standing, you can see there is a horse, there is a bull, and if you see the whole circle, there will be also an elephant and there will be another lion. Okay, so there are these animals. What do they denote? The elephant denotes Buddha's outset, the dream of a white elephant entering her womb, dreamt by Buddha's mother at the time of Buddha's conception. हाथी बुद्ध के आगमन को दर्शाता है. बुद्ध के गर्भाधान के समय बुद्ध की माँ ने उनके गर्भ में एक सफेद हाथी के प्रवेश का सपना देखा था. What does the bull symbolize? Bull symbolizes the zodiac sign of Buddha, the Taurus. बैल बुद्ध की राशि वृषभ का प्रतीक है. The horse signifies Buddha's horse which he rode at the time of departing from the citadel. घोड़ा बुद्ध के घोड़े का प्रतीक है जिस पर वह गढ़ से प्रस्थान के समय सवार हुए थे. And the lion indicates enlightenment. सिंह आत्मज्ञान का संकेत देता है. That is what is mentioned in a lot of books about what these animals signify. Also, there is another understanding that the bull represents hard work and steadfastness, while the horse represents loyalty, speed and energy. बैल, the bull, कड़ी मेहनत और दृढ़ता का प्रतीक है, जबकि घोड़ा वफादारी, गति और ऊर्जा का प्रतीक है. So that is another aspect
that these animals on the national emblem represent. राष्ट्रीय प्रतीक वाला अशोक स्तंभ भारत के किस राज्य में है? अशोका पिलर having the national emblem is in which state of India? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या झारखंड? The correct answer is उत्तर प्रदेश. अशोका पिलर ये सारनाथ का अशोका स्तंभ है जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है. अशोका स्तंभ का निर्माण कब हुआ था? When was the Ashoka pillar built? 200 BC, 250 BC, 280 BC और 300 BC? The correct answer is 280 BC. 280 ईसा पूर्व वर्ष भारत के अशोका पिलर का निर्माण हुआ था. 280 बिफोर क्राइस्ट. ओके, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट. अशोका स्तंभ का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया था? द अशोका पिलर वॉज बिल्ट बाय विच डायनेस्टी? द मौर्यास, द चोलास, द चालुक्यास और द पल्लवास? द करेक्ट आंसर इज मौर्य डायनेस्टी. मौर्य राजवंश ने अशोका पिलर को बनवाया था. अशोका स्तंभ धर्म चक्र में कितनी तीलियां हैं? द धर्म चक्र which is there on the national emblem has how many spokes? 28, 26, 24 or 22? The correct answer is 24. Dharma Chakra is also known as the Wheel of Law and it has 24 spokes which symbolize progress and evolution of human civilization. और ये धर्म चक्र, दिस व्हील ऑफ लॉ आपको हमारे भारत के झंडे पे भी देखने को मिलेगा. हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसमें भी ये धर्म चक्र, व्हील ऑफ लॉ इज देयर ऑन आवर नेशनल फ्लैग एज वेल. सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते इज अ कोट फ्रॉम विच उपनिषद? आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे नेशनल एम्बलम में नीचे सत्यमेव जयते, ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, ये कोट किस उपनिषद से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद, मुंडका उपनिषद, मैत्रेयी उपनिषद या कथा उपनिषद? द करेक्ट आंसर इज मुंडका उपनिषद. मुंडका उपनिषद से ये कोट सत्यमेव जयते लिया गया है. इसका मतलब है ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, सत्य की जीत होती है. Once that we now know what is our national emblem all about, we also have to know कि इसको कब कब और कहाँ पे डिस्प्ले किया जा सकता है. राष्ट्रीय प्रतीक को निम्नलिखित सार्वजनिक भवनों में प्रदर्शित किया जा सकता है. राष्ट्रपति भवन, that is President's House, संसद भवन, that is Parliament, सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय सचिवालय भवन, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स, राजभवन या राजनिवास, राज्य विधायिका मतलब स्टेट लेजिस्लेचर, उच्च न्यायालय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवालय भवन मतलब सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स ऑफ द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, और विदेश में भारत के राजनयिक मिशन का परिसर, प्रेमिसेस ऑफ इंडियाज डिप्लोमेटिक मिशंस अब्रॉड जैसे इंडियन एम्बेसीज, उनकी मान्यता वाले देशों में मिशनों के प्रमुख के निवास, रेजिडेंसेस ऑफ हेड्स ऑफ मिशंस इन द कंट्रीज ऑफ देयर एक्रेडिटेशन, और विदेशों में भारत के वाणिज्य दूतावासों के कब्जे वाली इमारतों के प्रवेश द्वार पर, at the entrance doors of buildings occupied by India's consulates abroad. तो इन सब जगहों पे हमारे नेशनल एम्बलम को डिस्प्ले किया जा सकता है. इसके अलावा आपने हमारी करेंसी पे नेशनल एम्बलम देखा होगा.
करेक्ट? सो ये सब जगह हैं जहाँ पे हमारे नेशनल एम्बलम को डिस्प्ले किया जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने पता किया या हमने सीखा कि हमारे नेशनल एम्बलम में क्या है, वो किस चीज़ का प्रतीक है, क्या दर्शाता है, और ये कब हमने अडॉप्ट किया था। जिस दिन हमने अपना पहला गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया था, उस दिन हमारे पहले रिपब्लिक डे को हमने इस एम्बलम को अडॉप्ट किया था, और ये कहाँ कहाँ पे डिस्प्ले किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।